हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशंस का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 1 by 3. Find x and y. Now please listen. ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये जब ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो नेचुरल है फर्स्ट वन के इक्वल होगा, सेकंड वन के इक्वल होगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो फर्स्ट वन के इक्वल होगा। दैट मींस x by 3 plus 1 किसके इक्वल है? 5 by 3. What does this imply? x by 3 equal to 5 by 3 minus 1, x by 3 equal to 2 by 3. Therefore, x equal to 2. And सेकेंड वन जो होगा सेकेंड वन के इक्वल होगा, यानी कि y माइनस 2 by 3 किसके इक्वल होगा? 1 by 3. तो y किसके इक्वल होगा? 1 by 3 plus 2 by 3. y किसके इक्वल आ गया? 3 by 3 which is 1. That's the answer for the 2. Let's start with the next question. So this was question 1. So I'm taking up question 2. If the set A has 3 elements, हमें दिया है number of element in set A is equal to 3 and the set B equal to 3 4 5. हमें B दिया है 3 4 5. So what does this imply? It implies number of elements in B is also 3. ठीक है? Then find the number of elements in A cross B. So it is such an easy question. मैंने बताया था number of elements in A cross B is m into n. If m is the number of elements in A, n is the number of elements in B. तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 into 3 that is equal to 9. So that was all in question second. Let me move on to the next one. Question 3. If G equal to 7 8 and H equal to 5 4 3 5 4 2 sorry, find G cross H. What is G cross H? हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था. G cross H means the कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था. It is the ordered pair, right? G cross H, let's say it is ordered pair AB where A belongs to G and B belongs to H. तो ये आएगा 7 5 7 4, next 7 2, then 8 5 8 4 8 2. So that is the partition. ठीक है? इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2. इसमें कितने? 3. तो टोटल 6 बनेंगे. 1 2 3 4 5 6. ठीक है? And we also have to get H cross G. और मैंने आपको बताया था if H cross G cross H is equal to H cross G, that means G and H are equal. Otherwise it cannot happen. H cross G में क्या आ जाएगा? 5 7, then 5 8, 4 7 4 8, and then 2 7 2 8. So that's all in this question. Let me move on to the next.
Fourth question. State whether each of the following statement is true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. अगर गलत है तो आप उसको correct करके लिखेंगे. If P equal to Mn, Q equal to Nm, then P cross Q. ये स्टेटमेंट दी हुई है हमें सिर्फ बताना है करेक्ट है या नहीं. क्या दिया है? Mn then Nm. तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इट इज इनकरेक्ट और इसको करेक्ट करके लिखते हैं. P क्रॉस Q इक्वल टू क्या बनेगा? Mn एक ऑर्डर पेयर. पहले यही देखते हैं. P के दो एलिमेंट है, Q के दो एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी 2 into 2 that is 4. यहां तो 2 ही आ रहे हैं. Mn आएगा, फिर Mb आएगा, उसके बाद Nn आएगा और उसके बाद Nm आएगा. ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं सीधा. If A and B are non-empty set, then A cross B is non-empty set of ordered pair x y such that x belongs to A and y belongs to B. So second statement is correct. It is the definition of the Cartesian product. Third part, A equal to 1 2, B equal to 3 4, then A cross B intersection 5 is equal to 5. चेक करेंगे पहले हम क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. बेसिकली व्हाट इज, मैं ये निकाल ही लेता हूं. A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 किसके इक्वल? A क्रॉस. व्हाट इज B इंटरसेक्शन 5? हमने ये पढ़ा था कि ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे इफ A इज ए नॉन एम्प्टी सेट देन A इंटरसेक्शन 5 इज ऑलवेज 5. तो ये वाला पार्ट ये 5 आएगा और A क्रॉस 5 जब कुछ है ही नहीं तो हम ले भी नहीं सकते, तो ये 5 रहेगा. तो दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज करेक्ट. So moving on to the next one. Let's see कोई और पार्ट तो नहीं था इसका. नहीं, 3 पार्ट्स ही हैं. Question 5. If A equal to minus 1 1, if A equal to minus 1 and 1, find A cross A cross A. ये किसके इक्वल आएगा? देखिए पहले A cross A फाइंड करें. A cross A किसके इक्वल आएगा? -1. यानी कि A क्रॉस A का क्या मतलब है? ये तो है हमारे पास, मैं यहाँ बताता हूँ. एक सेट है A 1 -1 and 1 और दूसरा B जो सेट है वो सेम एलिमेंट्स का. कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो -1 का पहले -1 से पेयर बना. ठीक है, उसके बाद -1 का 1 से बना, उसके बाद 1 का -1 से बना and then it is 1 and 1. तो ये तो आ गया A क्रॉस A. अब लिखना है हमने A क्रॉस A क्रॉस A. दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो इसका ये A, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो इस पूरे से, या फिर इस पूरे का कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे. सेम चीज बनेगी, ध्यान से देखें. तो अगर मैं ये A क्रॉस A को क्लब कर लेता हूं, सोचता हूं ये पूरा एक ही सेट है, तो ये वाला बन गया.
ये दूसरा सेट है, तो मैं ए क्रॉस ए ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये बनेगा -1 और इसके ये दो एलिमेंट्स ये एक, ठीक है। उसके बाद -1 का इसके साथ भी आएगा, -1 एंड 1, फिर ये -1 इसके साथ भी, यानी कि -1 1 -1, फिर ये -1 इसके साथ भी, -1 1 ये बन गया। इसी तरह से 1 का बनेगा, इन सब से पहले आएगा 1 -1 -1, फिर आएगा 1 -1 1, फिर आएगा 1 1 -1 और लास्ट में आएगा 1 1 एंड 1, ठीक है। इसके कितने एलिमेंट्स थे? 2, इसके 1 2 3 4, टोटल 2 into 4 8 बनेंगे, कौन करें? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। सो लेट मी टेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 6. If A cross B equal to AX, AY, BX, BY, find A and B. Find A and B. AX, AY, BX, BY, AX, AY, BX, BY, find A. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हमने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा दूसरे को। तो ए के एलिमेंट्स वो होंगे जो पहले वाले हैं, ए आ गए, दोबारा ए लिखने की जरूरत नहीं, फिर बी आ गया, ठीक है। बी के एलिमेंट दूसरे वाले एक्स आ गया एंड वाई आ गया। अब एक और चीज चेक कर लेते हैं, 2 एलिमेंट इसके हैं, 2 इसके हैं, तो ए क्रॉस बी में 4 बनने चाहिए, 1 2 3 4। सो ए और बी सेट आपको मिल गए। तो आई थिंक नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। I am taking up the next one. 7th question. Let A equal to 1 2. A equal to 1 2. B equal to 3 4. Sorry, it is not 3 4, it is 1 2 3 4. It's 1 2 3 4. C equal to 5 6 and D equal to 5 6 7 8. Verify that A cross B, it's the first part I am taking. A cross B intersection C should be equal to A cross B intersection A cross C. रिलेशंस का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने दिया था, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड इन केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B intersection C. This is the distributive property. It is A cross B intersection A cross C. So we have to prove this property now for these given sets. Clear? तो मैं LHS ले लेता हूँ. Let me find first B intersection C. B और C में क्या कॉमन है? देखिए B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो either तो I leave it like this or I write 5. ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि if A is a non-empty set, A इंटरसेक्शन 5 जो है 5 होगा, A क्रॉस 5 भी 5 होगा, तो मेरे पास अब क्या बचा? A क्रॉस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 5. लेट मी टेक नाउ RHS. इट इज A क्रॉस B. लेट मी फाइंड फर्स्ट A क्रॉस B. A क्रॉस B क्या आएगा? 1 1
then 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 3 1 4, and then similarly 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 and 2 4. Let me take B cross A cross C, sorry, A cross C. देखते हैं ये क्या बनेगा, A cross C, A cross C 1 5 1 6 1 5 1 6, then 2 5 2 6 2 5 2 6. Now just see, is there any ordered pair which is common? कोई common है? 5 तो यहाँ है ही नहीं तो common हो नहीं सकता, 6 भी यहाँ नहीं है, common नहीं हो सकता. तो I will write now therefore A cross B इंटरसेक्शन, हमें कॉमन क्यों ढूंढना था, इंटरसेक्शन है बीच में, A क्रॉस C is equal to 5. So I think now you can write LHS is equal to RHS. Let me move on to the next one. I am taking up second part of question 7. By mistake I left it. So I have to write the sets again. A, it was 1 2. B, it was 1 2 3 4. 1 2 3 4. C, 5 6. And D 5 6 7 8. So second part is A cross C. A cross C. This I have to prove now. This I have to verify is subset of B cross D. I think subset का मीनिंग भी सबको मालूम है. अब देखें, पहले A क्रॉस C ले लेते हैं, क्या आएगा 1 5 1 6, then 2 5 2 6 2 6. क्लियर. अब लेते हैं B क्रॉस D. B क्रॉस D आएगा 1 5. Oh my God, ये तो लेंथ बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 16 एलिमेंट्स बनेंगे. 1 5 1 6 1 7 1 8, then 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8, then 4 1 4 2 4 3. Oh sorry, not 1. It is 5 4 5 4 6 4 7. है ना? 4 5 4 6 4 7, and the last one is 4 8. Now is A cross C सबसेट ऑफ, देखिए 1 5 is contained in this set, ये वाला एलिमेंट आ गया, 1 6 आ गया 2 5, yes it is here, 2 5 is here, and 2 6, yes it is here. So A cross C is subset of B cross D. I think you can write that. ठीक है, hence we are verified. इसको मिलाते हैं. I am coming up to next question. I am taking up question
8 now. Wrong. Let A equal to 1, 2. And B is 3, 4. The question states write A cross B. So you write A cross B first. A में 2 एलिमेंट्स है, B में 2. टोटल कितने बनेंगे A क्रॉस B में? 4. 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 3 आएगा, एंड देन 2 4 आएगा. ठीक है, A क्रॉस B हो गया. Now the next part of the question is how many subsets will A cross B have? List them. सबसेट्स कितने बनेंगे A क्रॉस B के? हमने बताया था, हमने पढ़ा नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो कितना है? 2 रेज़ टू पावर n. अब A क्रॉस B के सबसेट्स बनाने हैं तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 4 बनेगा, 16 एलिमेंट्स बनेंगे. अब उसको हमने लिस्ट करना है, तो लिस्ट करने के लिए आई एम लिस्टिंग देम हियर. सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, ध्यान से सुनते जाना. R. सबसे पहले 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. 5 जो है हर एक का सबसेट बनेगा. उसके बाद जो सिंगल एलिमेंट्स हैं, ये 1 3 पूरा एक एलिमेंट काउंट करूंगा मैं, 1 3. पर ये एलिमेंट बना, सेट बनाने के लिए इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा. देन 1 4 एलिमेंट है, सेट बनाने के लिए ब्रैकेट में रखा. देन 2 2 3 इसको सेट में रखा. 2 3 के बाद 2 4 इसका सेट बना दिया. अब सिंगलटन खत्म हो गए. अब दो एलिमेंट्स लेंगे एट ए टाइम, 2 एलिमेंट्स. 1 3 लिया जैसे एक एलिमेंट, और दूसरा ले लिया मैंने 1 4. ठीक है, ये एक पूरा एलिमेंट बन गया. अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, 1 3 लिया, 2 3 लिया, 1 3 लिया और साथ में 2 3 ले लिया, ये पूरा सेट बना दिया. ठीक है, तो अगर मैं इसको इरेज कर दूं A क्रॉस B को, ताकि आई कैन गेट द प्लेसेस, इसको मैं 2 3 और 2 4 यहां लिख देता हूं. एंड आई विल यूटिलाइज दिस स्पेस नाउ. 2 3 आ गया. अब उसके बाद 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 2 3 आया, 1 3 2 3. अब आएगा 1 3 2 4 भी, 1 3 और 2 4 भी आएगा. ये सेट अलग से बन जाएगा. 1 3 के साथ हो गया. अब 1 4 2 3 आएगा, 1 4 2 3, ये एक सेट बन गया. ठीक है, 1 4 के साथ अब 2 4 आएगा, 1 4 के साथ 2 4 आया, ये एक सेट बन गया. कहाँ? अब डबल वाले खत्म हो गए. अब 3 में लेंगे, मतलब 3 एलिमेंट्स एट ए टाइम. जैसे 1 3 है, एक एलिमेंट, फिर 1 4 है, एक एलिमेंट, फिर 2 3 है, एक एलिमेंट, ये हमने ले लिया. ठीक है, अब 1 3 1 4 2 3 ले लिया. अब लूंगा 1 3, फिर लूंगा 1 4, फिर लूंगा 2 4. ठीक है, उसके बाद 1 3 2 3 1 3 2 3 और 2 4. पहले लिया था ये फिर लिया ये और ये. अब लूंगा ये और ये, 1 3 2 3 एंड 2 4. लेट मी काउंट दिस मैनी. अब ये क्या है, मेरे को एक लास्ट का लेना है, यानी ये 15 होने चाहिए. लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 2 मिसिंग है. लेट मी चेक कौन कौन से मिसिंग है. सिंगल वाले चारों आगे, डबल वाले चेक कर लेते हैं. 1 3 1 4
then 1323, 1324, 1423, 1424 missing I think, yes, 1424 आ गया, yes, 1424 is here, then what is missing, 2324 is missing I think, yes, so I think let me write it here, 2324, ठीक है, let me count it now, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, one more is missing, let me check it, 1 3 के साथ चेक करना, 1 4 आ गया, 1 3 के साथ 2 3 आ गया, 1 3 के साथ 2 4 आ गया, 1 4 के साथ 2 3 आया, 1 4 के साथ 2 4 आ गया, 2 3 के साथ 2 4 आ गया, यस, ट्रिपल में चेक कर लेते हैं, 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4, आई थिंक ट्रिपल में कम आ रहा है, 1 3 1 4 2 3, फिर आया 1 3 1 4, यस, ट्रिपल में कम आ रहा है, अभी ट्रिपल में कौन सा कम आ रहा है ध्यान से देखें, 1 3 के साथ हो गया, अब आएगा 1 4 के साथ, 1 4 2 3 and 2 4, और लास्ट में पूरे के पूरे एलिमेंट्स कौन कौन सा, 1 3 1 4 2 3 and 2 4, हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये सबसेट्स बन के मैं इसको ब्लैक से ब्रैकेट्स ड्रॉ कर देता हूं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, ये एक सेट अलग से, ये एक अलग से, ठीक है, अदरवाइज पूरा ब्लू में शायद डिफरेंशिएट ना हो पाए, तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको मैं ब्लैक से कर रहा हूं, I think it is now prominent. And now you can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16, so 4 into 4 is 16. That is correct. So I am going to erase this one and I am going to take any other part in this. 9. It is just this time. So I am going to take the 9th one. Question time. Let A and B be the two sets. N of A is 3. N of A is given 3. N of B is 2, N of B is 2. So A cross B will have how many? 6 elements. If x1, border x1, y2 z1, y2 and z1 are in A cross B, that means this belongs to A cross B, this belongs to A cross B, this belongs to A cross B. अब फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, where x y z are distinct elements, find A and B. मैंने बताया A जो है हमें A और B फाइंड करना है, उसके एलिमेंट्स आएंगे पहले वाले, ये तीनों बिलोंग करते हैं, तो पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, A को, तो A हमें मिल गया, A के तीन ही एलिमेंट्स थे, तीनों मिल गए, B दूसरा 1 2 1, B के दो ही एलिमेंट है 1 and 2, तो ये भी मिल गए बिकॉज सेकेंड एलिमेंट विल बिलोंग टू सेट B. तो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट वन. So the last question of this exercise,
the Cartesian product A cross B has 9 elements. We are given n of A cross A equal to 9. तो बिल्कुल हम इससे पता लगा सकते हैं कि n of A के पास 3 ही एलिमेंट्स हैं. n of A cross A has 9 elements. Therefore, n of A will have how many? 3 elements. Among which are found to be -1, 0. ये बिलोंग करता है A क्रॉस A को, करेक्ट? Then 0, 1 belongs to A क्रॉस A. तो इसमें दोनों A है, तो पहला भी और दूसरा भी एलिमेंट किसके बनेंगे? A के. क्वेश्चन है फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A. तो पहले A सेट फाइंड कर लेते हैं. ये बनेगा -1, 0 एंड 1. अब हमें A क्रॉस A फाइंड करना है. तो आई थिंक नाउ यू कैन फाइंड इट. इट इज -1, -1, -1, 0, -1, 1. Then 1 minus 1, 1, 0, 1, 1. And then अच्छा मैंने पहले 1 ले लिया, अब 0 ले लेते हैं. 0 minus 1, 0, 0 and 0, 1. That is all. So by this we completed this exercise. So next time we are going to take over the next one.